আসসালামু আলাইকুম, স্বাগত জানাচ্ছি বিটিউবের আজকের আয়োজনে। বাংলাদেশ গত 20 বছরে যেভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন করেছে তা বিশ্বের কাছে এখন মডেল স্বরূপ। আপনি যে কোনো রাজনৈতিক আদর্শকে সমর্থন করতে পারেন, তবে এ কথাতে হয়তো আপনিও একমত হবেন যে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের মর্যাদা আগের থেকে বৃদ্ধি পেয়েছে কয়েক গুণ। 20 বছর আগেও বিশ্ব গণমাধ্যমে বাংলাদেশকে নিয়ে তখনই খবর প্রকাশ করা হতো যখন ঝড়, বন্যায় বা অন্যান্য দুর্ভিক্ষে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হতো। কিন্তু বর্তমানে বিশ্ব মিডিয়ায় বাংলাদেশকে নিয়ে নিয়মিতই নিউজ কভার করা হয়, তবে তা ঝড় জলোচ্ছ্বাস বা দুর্ভিক্ষের নয়। খবর হয় অর্থনীতিতে বাংলাদেশের নতুন নতুন চমক নিয়ে। এমনই একটি খবর হচ্ছে, রিজার্ভ থেকে শ্রীলঙ্কাকে $200 মিলিয়ন ঋণ দিচ্ছে বাংলাদেশ। বিটিউবের আজকের ভিডিওতে আমরা দেখব ভারতীয় মিডিয়া শ্রীলঙ্কার অর্থনৈতিক অবস্থা এবং বাংলাদেশের $200 মিলিয়ন ঋণ নিয়ে আলোচনা করছে। তবে তার আগে আমি আপনাদের শ্রীলঙ্কা সম্পর্কে কিছু ধারণা দিতে চাই। আমাদের মাঝে অনেকেই আছেন যারা শ্রীলঙ্কাকে নিয়ে ভুল ধারণা পোষণ করেন। শ্রীলঙ্কা একটি মধ্যম আয়ের দেশ হলেও শ্রীলঙ্কার অর্থনৈতিক অবস্থা খুব একটা ভালো নয়। শ্রীলঙ্কা মূলত ট্যুরিজম খাতের উপর নির্ভরশীল। করোনা মহামারীর কারণে ট্যুরিজম খাত একেবারেই মাটিতে মিশে গেছে। তার উপর শ্রীলঙ্কা সরকার অনেক পরিমাণ ঋণ নিয়েছে চড়া সুদে। ঋণ নিয়ে শ্রীলঙ্কা সরকার ওইসব কাজে ব্যয় করেছে যা থেকে রিটার্ন আসবে না। দেশের সৌন্দর্য বর্ধন করতে গিয়ে শ্রীলঙ্কান সরকার বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার ব্যয় করেছেন। ফলে শ্রীলঙ্কা তাদের জমি চীনের কাছে লিজ দিতে বাধ্য হয়েছে। বলা যেতে পারে শ্রীলঙ্কার অবস্থা এখন পাকিস্তানের মতোই ভয়াবহ। যখন শ্রীলঙ্কার মাথার উপর ঋণের বোঝা, ঠিক তখনই বাংলাদেশ বন্ধু দেশ হিসেবে শ্রীলঙ্কাকে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসে কোনো কিছুর বিনিময় ছাড়াই। শ্রীলঙ্কা ভারত কিংবা চীনের থেকে ঋণ না নিয়ে কেন বাংলাদেশের কাছে ঋণ চেয়েছে, এই প্রশ্ন এখন আপনার মাথায় আসতেই পারে। দেখুন, পৃথিবীতে লাভ ছাড়া কোনো দেশ অন্য দেশকে সাহায্য করে না। তবে কিছু কিছু দেশ আছে, যেমন জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়া। বাংলাদেশের সাথে এই দুই দেশের সম্পর্ক অন্যরকম। তারা স্বার্থ ছাড়াই বাংলাদেশকে সাহায্য করে, পরামর্শ দেয়। তবে এর কারণ কি তা আমারও অজানা। কিন্তু বর্তমান বিশ্বে স্বার্থ ছাড়া কোনো দেশ কাউকে সাহায্য করে না। শ্রীলঙ্কা জানে তারা যদি চীন থেকে ঋণ সহায়তা চায় তাহলে এর বিনিময়ে চীন সমুদ্রবন্দর নিয়ে নেবে। একই কাজ ভারতও করবে, চীনের সাথে প্রতিযোগিতার অজুহাত দেখিয়ে। আর এই সমস্যা থেকে বাঁচতে লঙ্কান সরকার বাংলাদেশ সরকারের কাছে সাহায্য চেয়েছে। আর এটা নিয়ে আলোচনা করছে ভারতীয় একজন বিশ্লেষক। কি বলছেন তিনি, চলুন দেখে আসি। आई एम श्योर पहले भी आपने करेंसी स्वैप एग्रीमेंट के बारे में सुना होगा। अब देखिए, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट क्या एक बहुत ही जनरल टर्म है। ये कई प्रकार से हो सकते हैं। यहां पर हम जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, इसके अंदर जो बांग्लादेश है, जी हां, बांग्लादेश $200 मिलियन जो है देने वाला है एज अ लोन टू श्रीलंका। यहां पर आप न्यूज देख सकते हो, बांग्लादेश एग्रीज $200 मिलियन करेंसी स्वैप डील टू हेल्प श्रीलंका। तो यहां पर कई सारे प्रश्न उठते हैं कि ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से जो श्रीलंका है उसको बांग्लादेश से मदद की आवश्यकता पड़ गई। क्या श्रीलंका ने भारत से पूछा था? अगर पूछा था तो भारत का क्या जवाब आया? यहां पर भारत क्यों नहीं मदद कर सकता श्रीलंका की? तो बहुत सारे क्वेश्चन है यहां पर। इन सभी के डाउट्स मैं आपके सुलझाऊंगा इस वीडियो। एग्जैक्टली हुआ क्या है, सबसे पहले हम इसके बारे में देख लेते हैं। जिस तरह से हमारे देश के अंदर जो सेंट्रल बैंक है जिसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वैसे ही बांग्लादेश के अंदर इसका नाम है बांग्लादेश बैंक। तो बांग्लादेश बैंक ने जो श्रीलंका की सेंट्रल बैंक है उनके साथ इन प्रिंसिपल अप्रूवल कर दिया है फॉर अ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट ऑफ $200 मिलियन। अब ये करेंसी स्वैप की श्रीलंका को अचानक से जरूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि वहां पर फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस आ रखा है। जैसे कि आपको याद होगा 1991 में भारत के अंदर यहां पर फॉरेन एक्सचेंज, जब मैं फॉरेन एक्सचेंज करता हूं तो ज्यादातर हम डॉलर की बात कर रहे हैं क्योंकि हम बाहर से बहुत सारी चीजें मंगाते हैं। स्पेशली अगर हम ऑयल की बात करें, क्योंकि यहां पर ऑयल उतना ज्यादा मिलता नहीं है, तो बाहर से अगर हमें ऑयल मंगाना है, कुछ भी मंगाना है, तो हमें डॉलर में पेमेंट करना होता है। अगर हमारे पास डॉलर खत्म हो जाएंगे तो हम कैसे बाहर से वो सारी चीजें मंगाएंगे। इसके अलावा हमने कई सारे लोन लिए हुए हैं, उस लोन को रीपेमेंट करना है तो उसको भी डॉलर के टर्म्स में लौटाना पड़ेगा। तो ये जितनी भी चीजें हैं वो श्रीलंका के अंदर अभी क्राइसिस के तौर पर आ रखी हैं। श्रीलंका ने बहुत सारे लोन लिए थे, अभी के लिए उनको $4 मिलियन जो है वो पेमेंट करना है और इसी की वजह से यहां पर उनके पास उतने पैसे नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखो, उनके पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है इट इज जस्ट $4 मिलियन। आई मीन $4 मिलियन इज नथिंग डॉलर। और इस समय श्रीलंका के पास जस्ट
$4 मिलियन ही बचा है। तो आप इमेजिन कर सकते हो किस सिचुएशन में इस समय श्रीलंका होगा। उसको कुछ भी खरीदना है, कुछ भी चाहिए, वो यहां पर पेमेंट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से अचानक से उसने बांग्लादेश के साथ ये $200 मिलियन का जो करेंसी स्वैप है वो एग्रीमेंट इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया है। अब क्या होगा कि फॉर्मल तरीके से एग्रीमेंट वगैरह किया जाएगा तो श्रीलंका जो है वो बांग्लादेश से ये डॉलर ले सकता है एज अ लोन। लेकिन हां, ऐसा नहीं है कि ये कोई इंटरेस्ट फ्री है, यहां पर इंटरेस्ट भी लगेगा, मतलब थोड़ा इंटरेस्ट लगता है, 2% 3%, वो जो भी एग्रीमेंट फॉर्मल एग्रीमेंट में जो होगा वो उस हिसाब से डिसाइड किया जाएगा। लेकिन श्रीलंका के लिए फायदा यह है, श्रीलंका की सरकार के लिए, कि उसको मार्केट से ज्यादा सस्ते दाम पर जो है लोन मिल रहा है, एक तरह से आप कह सकते हो। मतलब मार्केट से अगर वो बोरो करेगी श्रीलंका की सरकार तो हो सकता है उसको 6% 7% इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़े, लेकिन बांग्लादेश को वो सिर्फ जो है 2 या 3% में भी हो जाएगा। वो डिपेंड करेगा किस तरह का होता है, और जो पीरियड है मतलब 2 साल का है, 1 साल का, 6 महीने का, वो तो अब एग्रीमेंट के अंदर बताया जाएगा, वो एक अलग चीज है। लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन आता है, इजंट इट अनयूजुअल, शायद हमने कभी सुना भी नहीं था, ये शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि बांग्लादेश जो है वो एक तरह से लोन दे रहा है, की चीजें होती हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, पिछले 2 दशक में, पिछले 20 वर्षों में अगर आप देखोगे तो काफी तेजी से यहां पर बांग्लादेश ने अपने इकोनॉमी को ग्रो करने की कोशिश की है। और पिछले साल 2020 में तो ये फास्टेस्ट ग्रोइंग नेशन था अमंग ऑल दी साउथ एशियन कंट्रीज। 2020 में इसकी इकोनॉमी आपको पता है कितनी ग्रो की? +5.2%। मतलब आप सोचो, भारत की इकोनॉमी कहां -8% हम बात कर रहे हैं, और यहां पर +5.2%। और अगले साल भी, ये जो प्रेजेंट ईयर चल रहा है, इसमें भी 6.8% होने के अनुसार है अकॉर्डिंग टू IMF। अब इससे फायदा क्या होता है? देखिए, जब भी कोई इकोनॉमिक ग्रोथ होता है ना, उससे आप कह सकते हो इनइक्वालिटी तो बढ़ती है, लेकिन इसका सबसे बड़ा जो फायदा है, और मेरा भी ये मानना है, कि कई सारे जो गरीब लोग हैं वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर निकल कर आते हैं। जब भी इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, कई लोगों का कंप्लेन होगा कि इनइक्वालिटी बढ़ेगा, बट हमारे लिए इस समय चिंता की आवश्यकता क्या है कि पॉवर्टी से सबसे पहले 2 वक्त का रोटी तो दो, बाद में हम सोचेंगे इनइक्वालिटी और इक्वालिटी के बारे में। तो यही चीज होता है। तो बांग्लादेश ने अपने मिलियंस ऑफ पीपल को पॉवर्टी से बाहर निकाला है, और रिसेंटली आपने देखा होगा पर कैपिटा के टर्म्स में भारत को भी इस साल उसने पीछे छोड़ दिया है। और इसके फॉरेक्स रिजर्व की आप बात करिए, आप देखो फॉरेक्स रिजर्व कितना है, इट इज $45 बिलियन। एक बांग्लादेश जैसी इकोनॉमी के लिए $45 बिलियन फॉरेक्स रिजर्व ना एक अच्छी बात है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत के अलावा किसी और सार्क देश ने किसी दूसरे सार्क देश को यहां पर मदद की है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस। ये पहली बार ऐसा हो रहा है। অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য। দেশের বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ থেকে এবারই প্রথম স্বল্প সময়ের জন্য শ্রীলঙ্কান সরকারকে $20 কোটি ঋণ সুবিধা দিচ্ছে বাংলাদেশ। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ যেভাবে অগ্রসর হচ্ছে, অদূর ভবিষ্যতে হয়তো এর থেকেও বেশি টাকা আমরা বিভিন্ন দেশকে ঋণ দিতে পারবো। শুধুমাত্র দুর্নীতি বন্ধ করতে পারলেই বিশ্ব দেখবে উন্নত অন্য এক বাংলাদেশকে। দুর্নীতিবাজদের রুখে দিয়ে এগিয়ে যাক প্রাণের প্রিয় জন্মভূমি। এই প্রত্যাশায় শেষ করছি আজকের ভিডিও। লাইক, কমেন্ট ও শেয়ার করে বিডিটিউবের সাথেই থাকুন। সেই সাথে আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে আজ প্রথম হয়ে থাকেন, তাহলে প্রিয় জন্মভূমিকে নিয়ে আমাদের এই পথ চলায় বিডিটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আপনিও পাশে থাকুন। আর ইতিমধ্যে সাবস্ক্রাইব করে থাকলে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।